So today we have to study the new unit, that is globalization and trade. Globalization and trade. Now here you can see a picture beside the topic. The picture is very illustrative. It gives you an idea about what is globalization. Now in the picture we can see that there is a globe or a map of earth, a picture of earth, and it is shown that there is a small network, that is actually network of satellites that are rotating about the earth. So that is trying to show the telecommunication system, the information technology system that is connected, the internet, the telecom, mobile and everything. And then we can see some people joining their hands around the earth. So it is trying to say that the world, the different part of world have got connected by means of the telecom facilities, the internet and satellite services and the this telecom facilities. And the people all around the world, they are working together. So this is what is globalization and trade. Okay, now we will study the globalization and trade. In this, our objectives will be to know the meaning and history of globalization. Now, first point is to know the meaning and history of globalization. We already know the meaning of globalization. We will study a little history of globalization. The second point is to know the trade and traders in South India historical perspective. So because we know that the foreign trade in India started from the South India, because the sea route, they came via sea route and they landed at near Calicut, that is in South India. So it started from there. So that we will study. To know the evolution of growth of MNC, and then we will study how these MNCs, the multinational companies, they started and grow. To know the fair trade practices and WTO. Then we will study about some ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्यापार कैसे होता है, उसमें फेयर प्रैक्टिसेस यानी सही तरीके क्या हैं व्यापार करने के, जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उम्मीद किए जाते हैं, जो कानूनी तरीके हैं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस and WTO. And we will study about the World Trade Organization. And the last point is to understand the impact and challenges of globalization. Then we will study what are the effects, the impact of globalization, and what challenges it creates, what challenges it poses in front of our society, our country. Now, the first introduction. Liberalization, privatization and globalization have become a much talked of subject among politicians, economists and businessmen in modern days. यानी ये जो विषय है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये आज इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा जो है होती है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, राजनेता हों, या इकोनॉमिस्ट हों, अर्थशास्त्री हों, या बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, क्योंकि आज हर जगह व्यापार जुड़ गया है सभी देशों से, इसलिए इन बातों की काफ़ी चर्चा होती रहती है। 2.1 ग्लोबलाइजेशन. Globalization, as we have studied, globalization is the integration of a country with the world economy. ये भी एक बहुत छोटा डेफिनेशन है, स्पष्ट. Globalization is the integration of a country with the world economy. यानी किसी देश का पूरे दुनिया की इकोनॉमी से पूरी तरह जुड़ जाना. इंटीग्रेशन मतलब पूरी तरह जुड़ जाना, घुल मिल जाना.
इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि विदेशियों को, सभी देश के इकोनॉमी को अपने देश से जोड़ लेना, उसको इन्होंने नाम दे दिया इंटरनेशनलाइजेशन। यानी हर चीज इंटरनेशनल हो गई है, हर चीज आज कहीं भी किसी भी देश से जुड़ जा रही है। प्लस लिबरलाइजेशन, और प्लस यानी कि जो भी नियम कानून थे वो बहुत ही सिंपल हो गए, रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन। एंड हेयर वी कैन सी द फोटोग्राफ globalization. It is showing that different parts are getting connected to one another. Here we can see that different parts of the world are getting connected to each other. और ये कनेक्शन चाहे तो फ्लाइट्स के माध्यम से हो रहा है, एयरवेज, चाहे ट्रेड के माध्यम से हो रहा है, चाहे टेलीकॉम फैसिलिटीज के माध्यम से हो रहा है, जैसे भी मतलब जुड़ गए हैं। आज हमें बात करनी होती है, तुरंत हम फोन लगाते हैं, किसी भी देश में बात कर लेते हैं, तुरंत हम वीडियो कॉल लगाते हैं, तुरंत व्हाट्सएप कॉल लगाते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, ईमेल हो जाता है। जाना है फिजिकली हमें तो हम प्लेन पकड़ के चले जाते हैं या सी रूट से चले जाते हैं, और अगर सामान भेजना है तो वो भी हमारा जो है फ्लाइट से चला जाता है या सी रूट से चला जाता है। यानी कि पूरी तरह जुड़ चुके हैं, काम करना है मिलजुल के, सभी देश के लोग काम कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ देयर इज नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जो है, चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, हमारे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सिल्क एंड स्पाइस रूट। सिल्क एंड स्पाइस रूट, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा है, फर्स्ट पेज पर ही नीचे है। हाँ देखिए नीचे इसमें देखेंगे, आर्केक ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, उसमें जो है फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में देखिए लाइन है, एन अर्ली फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहां से अंडरलाइन करेंगे, एन अर्ली फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसको आप ठीक है यहाँ से वीडियो से सुन के वो अंडर कर लेंगे, लिख लेंगे। एन अर्ली फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द ट्रेड लिंक बिटवीन द रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर एंड द हान डायनेस्टी made the commercial links between these powers inspired the development of Silk Road, या इसको सिल्क रूट हम कहते हैं, सिल्क रोड या सिल्क रूट। तो ये देखिए क्या था कि रोमन एम्पायर, फिर बीच में था पार्थियन एम्पायर, और यहाँ चाइना में था हान डायनेस्टी, हान किंग्स का रूल था उस समय। तो इन तीनों के बीच में जो जुड़ाव था ट्रेड का, जिसके कारण कि लोग यहाँ से चाइना आते थे और चाइना से लेके सामान और लैंड रूट के पार्थियन एम्पायर होते हुए रोम पहुंचते थे। तो इस रूट को, चूंकि इसमें सिल्क, चाइना का सिल्क बहुत पसंद किया जाता था यूरोप में, तो इसीलिए वो सिल्क खास करके लेने के लिए इतने दूर आते थे और ट्रेड होता था सिल्क का, इसलिए इस रूट को नाम ही पड़ गया सिल्क रूट या सिल्क रोड। तो ये चाइना तक आती थी और चाइना से होके वहां इटली, रोम तक जाती थी। द इस्लामिक एज वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अर्ली स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर जब इस्लामिक एज आया, यानी हर जगह जब इस्लामिक किंग्स का राज था, द एडवेंट ऑफ द मंगोल एम्पायर, दो डिस्टेबलाइजिंग टू द कमर्शियल सेंटर्स ऑफ मिडिल ईस्ट एंड चाइना, greatly facilitated travel along the Silk Road। फिर कहा जा रहा है कि जब मंगोल एम्पायर आया था, ठीक है, यानी मंगोल्स का जब राज चला था, तो हालांकि इन्होंने काफी लूट मार मचाते थे, तो व्यापारी लोग काफी इससे डिस्टर्ब हो गए थे, इनके आने से उनका व्यापार काफी डिस्टर्ब हो गया था।
लेकिन इस रूट पर काफ़ी फिर भी ट्रेड होता था। देखिए नीचे नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाया गया है सिल्क एंड स्पाइस रूट, सिल्क एंड स्पाइस रूट। तो इसको, चूंकि इसको ये जो रूट है इसको एक तो सिल्क के लिए मेनली यूज होता था और दूसरा स्पाइसेस के लिए भी यूज होता था, क्योंकि इधर मसाले मिलते थे चाइना में और इंडिया में। तो इसमें आपको रेड कलर से जो दिखाया जा रहा है वो लैंड रूट है, यूरोप से आके एशिया तक का, चाइना तक का। और जो फिर बाद में सी रूट डिस्कवर हुआ, तो सी रूट से कैसे आते थे लोग, ये आपको दिखाया गया है। तो इसको आप जो है, इसको वैसे भी काम आएगा, इस मैप, इस पेज को निकाल लीजिएगा प्रिंट जो है। तो इसमें देखिए आपको जो है दिखाया गया है, एक जो है आपका रेड कलर में लैंड रूट है, जो कि लैंड रास्ते होके आ रहा है। कैसे लैंड के रास्ते होते हुए आते थे, और फिर बाद में सी रूट जब डिस्कवर हुआ तो सी रूट से कैसे आते थे। देखिए इस मैप को अगर हम बड़ा करके देखें थोड़ा, मेडिटेरेनियन सी है उसको देखेंगे, बड़ा यूरोप का जो पार्ट है। तो मेडिटेरेनियन सी जो है उसमें देखिएगा बड़ा करके, यूरोप का जो पार्ट है एक, उसमें देखिए एक आदमी के पैर जूता पहने हुए की तरह अंदर आ रहा है मेडिटेरेनियन सी में। देखिएगा लग रहा है जैसे आदमी का पैर है और वो ऊंचा बूट पहने हुए है, पैर में नीचे बूट जैसा दिख रहा है। ये एक्चुअली इटली है, ये इटली है जो इस तरह का दिख रहा है। तो इटली से ये जो है होता हुआ आ रहा है रोम से, मेडिटेरेनियन सी में होता हुआ, और इधर आके आगे जो है फिर वहां से लैंड रूट जो है शुरू हो जा रहा है। और ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इधर जो है आपके बाद में स्वेज कैनाल बन गया था, तो स्वेज कैनाल से होते हुए यहाँ जो इजिप्ट से होते हुए आ रहा है, ये स्वेज कैनाल से होते हुए यहाँ गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया के ऊपर क्रॉस करते हुए, गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं, वहाँ से क्रॉस करते हुए फिर ये इधर एक तो आ रहा है आपका मिडिल ईस्ट की तरफ, पर्सिया की तरफ जा रहा है, और एक आ रहा है इंडिया की तरफ, जो कि वहाँ से इंडिया के नीचे कोस्ट पर कालीकट की तरफ साउथ में या जो भी है वहाँ आ जाता था, और फिर वहाँ से श्रीलंका होते हुए चला जाता था उधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार कह रहे हैं, मलेशिया, थाईलैंड, हाँ उधर ये चला जाता था। खैर, तो ये जो है आपका सी रूट है, और लैंड रूट आपको रेड कलर में जो पहले यूज होता था। नाउ देखिए इसमें अब हम आएंगे मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन टॉपिक में आ जाते हैं, बाकी की अभी हमें जरूरत नहीं है। मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन यानी आज के समय का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ। द 19th century witnessed the advent of globalization approaching its modern form। 19th सेंचुरी में यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1850 के बाद, सॉरी 1750 के बाद, जो मतलब 1800 कुछ से 50 से जनरली यहाँ आना इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। द 19th century witnessed the advent of globalization in its modern form। आज के समय में जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न फॉर्म में आया, क्योंकि पहले दूसरे तरह का ग्लोबलाइजेशन था जो हम हिस्ट्री में उसको नहीं देखे, और मॉडर्न फॉर्म जो ग्लोबलाइजेशन था वो 19th सेंचुरी से शुरू हुआ। Between the globalization in the 19th and 20th century there are significant differences। और 19th और 20th सेंचुरी में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उनमें काफी फर्क था। There are two main points। क्या फर्क था भाई? तो there are two main points। One is the global trade in these centuries as well as the capital, investment and the economy, and another one is the global trade in the 20th century shows a higher share of trade in merchant production। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो है कि ग्लोबल ट्रेड इन दिस सेंचुरी एज वेल एज द कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि जो 19वीं यानी कि जो आज़ादी के पहले भारत में जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा था वहाँ क्या हो रहा था,
वहां देखिए आपको कैपिटल भी यहाँ लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट, और हमसे पूरी तरह फायदा वो ले रहे थे, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे पूरी तरह से। जबकि 20th सेंचुरी में जो हुआ है, इट इज शोइंग अ हायर शेयर ऑफ ट्रेड। यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग हो रहा है, यानी कि खरीद बिक्री हो रहा है कि हाँ भाई जापान का टीवी यहाँ के बिक रहा है, हम उसे पैसा देके खरीद रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। और इसमें प्रोडक्शन पर फोकस है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम माल बनाएं ताकि उसको बेचें। लेकिन उस समय क्या था फोकस, कि हम जाके कैप्चर कर लें और वहाँ से हम एक्सप्लॉइटेशन करके सारा पैसा वहाँ का चूस लें। तो ये दोनों में थोड़ा फर्क था 19th और 20th सेंचुरी। तो 20th देखिए, इन द ग्लोबल ट्रेड इन 20th सेंचुरी shows a higher share of trade in merchant production, a growth of the trade in services, सर्विसेज का भी ट्रेड काफी होने लग गया है, यानी कि लोग वहां से यहाँ के काम कर रहे हैं, यहाँ से वहां जाके काम कर रहे हैं, ये हो रहा था। एंड द राइज ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय मल्टीनेशनल फर्म, और फिर प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ा है क्योंकि ऐसे फर्म्स धीरे धीरे बढ़े हैं जो कि कई देशों में काम करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज या फर्म्स। फर्म भी बोला जाता है कंपनी को। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा सभी देशों में हो गई हैं, जो कि कई देशों में काम करती हैं, और उनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है और साथ ही साथ ट्रेड भी बढ़ा है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन साउथ इंडिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें अभी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे ज़्यादा, हमें अभी मतलब नहीं है, मेंस के लिए सब टॉपिक है। ये आए जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स, पोर्चुगीज, ये सब आए जो हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इन सब का हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.4, दैट इज ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा थोड़ा बहुत और भी चीज़ें आएंगी, तो उस समय का क्या घटनाएं हो रही थी ये सब हम जानेंगे। इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। देखिए 2.4, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इन इंडिया द पीरियड आफ्टर 1980-81 was marked by severe balance of payment difficulties, mainly due to hike in oil price and Gulf War in 1990-91 and hostilities in वेस्ट एशिया। देखिए क्या हुआ, क्या घटनाएं हो रही थी। 1980-81 के बाद का जो समय था, उसमें हमारे देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे हम, आपको पता है कोई भी देश क्या करता है, बहुत सी चीज़ें वो एक्सपोर्ट भी करता है, यानी दूसरे देशों में बेचता भी, और बहुत सी चीज़ें उसके यहाँ बाकी बाहर के देश आके बेचते हैं, यानी वो इंपोर्ट करता है। तो बहुत सी चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं, यानी मंगाते हैं बाहर से, और बहुत सी चीज़ों को बाहर में बेचते हैं। इन दोनों के डिफरेंस जो होता है पैसे का, पेमेंट का, देखिए एक तो हुआ क्वांटिटी का, ठीक है, या तो जैसे एक्सपोर्ट, हम मान लीजिए कि हमने इंपोर्ट किया 200 करोड़ का और एक्सपोर्ट किया मात्र 100 करोड़ का, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि बैलेंस क्या हुआ, जैसे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
लेकिन अगर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये तो हुआ। अब इसमें जो है कुछ हमारे पैसा भी लोग वहां से भेजते हैं, तो इसमें एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं कि जो हमें जो है कुल, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जो भी हम लोन वगैरह लिए हैं किसी देश से, मतलब ट्रेड के अलावा भी कुछ लोन वगैरह लिए हैं, या इंटरेस्ट पेमेंट करना, ब्याज चुकाना है हमें उसको या उसको हमें, जो भी है, तो इन सब का जो टोटल बैलेंस होता है पैसा का हिसाब किताब करके, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ये फाइनल होता है कि हमें किसी देश को या कि कई देशों को इतना पैसा देना है या हमें उनसे लेना है। कुल हिसाब किताब होता है विदेश के साथ हमारे देश का, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी पेमेंट्स का बैलेंस निकालते हैं टोटल प्लस माइनस करके, कि हमें पैसा उन पर निकलता है या उनका पैसा हम पर निकलता है, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि इन इंडिया आफ्टर 1980-81 पीरियड वाज मार्क्ड बाय सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। यानी जो पैसा जो है हम, या तो बहुत ज़्यादा हमें बिल चुकाना पड़ रहा था, उतना पैसा था नहीं, या मतलब उसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही थी पैसे के हिसाब किताब में। क्यों? मेनली ड्यू टू हाइक इन ऑयल प्राइस। पहला कि तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई थी। पेट्रोलियम की, तेल हम जब भी बोलेंगे तो पेट्रोलियम का मतलब, तो पेट्रोलियम की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड गल्फ वॉर, उस समय गल्फ में लड़ाई चल रही थी, और गल्फ ये जो कह रहे हैं तो वही गल्फ ऑफ एडन, और इधर जो है यानी जो गल्फ कंट्रीज कहे जाते हैं, ठीक है, कुवैत हो गए, ओमान हो गए, कतर हो गए, सऊदी अरब हो गए, ये सब जो कई देश हैं जो वहाँ समुद्र में लाइन से लगे हुए, उनको गल्फ कंट्रीज कहते हैं। तो कुवैत पर हमला कर दिया था ईरान ने, इराक ने, ठीक है, तो उससे वहाँ एक लड़ाई छिड़ गई थी, इसको कहते हैं गल्फ वॉर, काफ़ी समय तक चली थी। तो गल्फ वॉर छिड़ गया था, और इसके कारण क्योंकि हम ऑयल ज़्यादा वहीं से लेते थे, इन्हीं कंट्री से लेते थे, सऊदी अरब से लेते थे, कतार, ये सब से, सऊदी अरब से ज़्यादा आता है, तो उसके कारण हमारा उसका तेल का कीमत बढ़ गया था, क्योंकि शिप आ नहीं, लड़ाई हो रहा था, शिप का आना जाना मुश्किल हो रहा था। तो ड्यू टू हाइक इन ऑयल प्राइस एंड गल्फ वॉर एंड हॉस्टिलिटीज इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया यही कहते हैं, जो एशिया का वेस्ट पार्ट है, दैट इज ये सब सऊदी अरब और जो गल्फ, ईरान वगैरह सब आते हैं उसमें, वेस्ट एशिया में। तो वहाँ जो हॉस्टिलिटीज यानी एक दूसरे से दुश्मनी हो गई थी देशों की, इस वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। एक तो पेट्रोलियम मंगाने में वहाँ से, क्योंकि पेट्रोलियम आने में दिक्कत हो रहा था, और उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी, और हमारे पास उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था उस समय देने के लिए, खजाना हमारा खाली हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का। When the new government took over in June 1991, तो एक नई सरकार आई थी उस समय हमारे यहाँ जून 1991 में, यानी जो कांग्रेस सरकार आई 91 में। इंडिया हैड अनप्रेसिडेंटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो इंडिया उस समय भारी मुसीबत में, पैसों की मुसीबत में चल रहा था, यानी इसके पास डॉलर खत्म हो रहे थे, बहुत ही कम थे फॉरेन एक्सचेंज। तो क्योंकि आपको पता है कि जो भी विदेश से ट्रेड होता है वो फॉरेन एक करेंसी में होता है, फॉरेन एक्सचेंज में होता है, चाहे तो वो डॉलर्स में होता है या गोल्ड में, जैसे भी होता है। आप गोल्ड भी दे सकते हैं अगर हैं तो हमारे पास चूंकि उस समय न गोल्ड रिजर्व में रह गया था, न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रह गया था, क्योंकि इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दे रहे थे सरकार, और हम लोग घाटे में बहुत पैसा खर्च कर रहे थे। सरकारें जो है अपना वोट लेने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही थी अनाप शनाप, तो हिसाब किताब पूरा देश का गड़बड़ा गया था। तो बहुत ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ गए थे कि अगर हम विदेश से कुछ मंगाएंगे तो उसका पैसा कहाँ से देंगे।
और वो हमें फिर देना बंद कर देगा सप्लाई, और हम लोग का सारा सप्लाई रुक जाएगा पेट्रोलियम और बहुत सारी चीज़ों का। तो इट वाज अ बिग क्राइसिस जब कांग्रेस सरकार उस समय आई, नरसिम्हा राव की सरकार। विथ द डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडियाज क्रेडिट रेटिंग बाय सम इंटरनेशनल एजेंसीज, देयर वाज हैवी फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ इंडिया। तो देखिए, कुछ एजेंसी, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको कहा जाता है क्रेडिट एजेंसी। वो क्या है कि देशों का, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, तो देशों का एक क्रेडिट रेटिंग बनाता है, अभी भी होता है। तो क्रेडिट रेटिंग यानी कि उसको कितना बढ़िया उसका इकोनॉमिक कंडीशन में है, उसके अनुसार उसका रेटिंग बनता है कि इसको इतना आसानी से क्रेडिट यानी उधार दिया जा सकता है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस वर्ल्ड में आपकी कितनी अभी रिस्पेक्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग का भी इंडिविजुअल, सिर्फ हम लोग जो हैं आदमी हैं जो भारत में, हम लोग का भी एक क्रेडिट रेटिंग होता है। मैंने बताया था, इसको कहते हैं सिबिल स्कोर, CIBIL, सिबिल स्कोर। तो जैसे आप कहीं बाजार में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लोन पर लेने, फाइनेंस कराने जाते हैं कि हाँ गाड़ी ले रहे हैं फाइनेंस पर या लोन पर, तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। तो वो आपका चेक करता, वो सिबिल स्कोर बताता है कि आपका मार्केट में कितना अच्छा रेपुटेशन है और कितना आपका लोन दिया जा सकता है। उसके आधार पर वो आपको लोन देता है, कितना आपको लोन मिलेगा सर, या इतना फाइनेंस करेंगे, इतना, वो होता है। तो ये जनरली कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम कितना अपना पहले का सब लोन वगैरह कितने जल्दी चुकाए हैं, अच्छे से उसका टाइमली पेमेंट किए हैं, हमारा सैलरी कितना है, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितना होता है वगैरह, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसी तरह कंट्रीज का भी होता है कि कंट्री का इकोनॉमिक कितना अच्छा चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना बढ़िया चल रहा है, या उसके यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसा है वहाँ, उसके और देशों के साथ कैसा रिलेशन चल रहा है, बहुत सारी बातें होती है। आपका फॉरेन एक्सचेंज कितना है, आपके यहाँ इकोनॉमी डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है, इन सब बातों पर जो है वो क्रेडिट रेटिंग उसको मिलता है। अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे IMF कुछ हमारा निकालता है कि इंडिया का इतना ग्रोथ होने जा रहा है। कुछ और रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे एक का नाम है मूडीज, एक है फिच। ठीक है, मूडीज और फिच, ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और भी हैं। तो ये इंडिया को रेटिंग देते हैं कि इंडिया, उससे रेटिंग से ये होता है कि हाँ सभी जो बिजनेस, जो दुनिया भर की कंपनीज हैं, वो उसी रेटिंग को देखते हुए कहीं भी पैसा लगाते हैं या बिजनेस कहीं करते हैं। और ये रेटिंग समय समय पर ये घटाते बढ़ाते रहते हैं। आपकी इकोनॉमी अच्छे परफॉर्म कर रही है, आपके यहाँ सरकार अच्छे से चल रही है, आपके यहाँ बिजनेसमैन अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपका रेटिंग बढ़ा देगा। आपके यहाँ उल्टा महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, इकोनॉमी आपकी डूब रही है, तो आपका वो घटा देगा। ये होता है, इसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे अक्सर आप जो है देखेंगे न्यूज़ में, एक है मूडीज इंटरनेशनल, इंग्लिश पेपर में आएगा, हिंदी में भी कभी कभी छापता होगा, देखिए। तो मूडीज है, एक फिच है, और भी कई सारे हैं। ठीक है, अभी हम एक दो के बारे में जान रहे हैं। और IMF भी है। तो IMF रेटिंग एजेंसी नहीं है, वो तो अपना इंडिया के ग्रोथ के बारे में बताता है, लेकिन ये सब रेटिंग एजेंसीज हैं। तो उस समय भी क्या हुआ कि जब इंडिया के क्राइसिस चल रही थी, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं रह गया था और इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमी भी खस्ता हाल हो गई थी, तो रेटिंग एजेंसीज ने क्या किया, इंडिया का जो है स्कोर बहुत कम कर दिया, घटा दिया इसका रेटिंग, यानी इसका कह दिया सबको कि भाई यहाँ बिजनेस करने लायक नहीं। सिग्नल ये होता है। तो क्या हुआ, विदेशी कंपनियों ने तेजी से अपना जो भी यहाँ पैसा लगाया हुआ था वो निकालना शुरू कर दिया। वही यहाँ कहा जा रहा है, देखिए समझिए लाइन को। विथ द डाउनग्रेडिंग यानी कम करना, डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडियाज क्रेडिट रेटिंग बाय सम इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज जो थे, ऐसे फिच है, मूडीज हो गए और हैं,
तो उन्होंने जब कम कर दिया तो क्या हुआ, देयर वॉज हैवी फ्लाइट ऑफ कैपिटल। फ्लाइट का मतलब होता है जाना, फ्लाइट जो है, एक फ्लाइट का मतलब होता है जाना, तो हैवी फ्लाइट यानी तेजी से गया, ऑफ कैपिटल यानी पूंजी, आउट ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया का क्रेडिट रेटिंग घटा दिया इन एजेंसीज ने, तो तेजी से सारी विदेशी कंपनियां अपना अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई थी इंडिया में, वो बाहर निकाल के यहाँ से ले जाने लगे। यानी कि अगर कंपनी सेटअप किए थे तो कंपनी बंद करके अपना ले जाने लग गए, पैसा लगाए थे तो पैसा ले जाने लग गए, या किसी के साथ ज्वाइंट में काम कर रहे थे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप खत्म करने लग गए। यानी तेजी से यहाँ से कैपिटल बाहर जाने लग गया। सिंस इंडिया लॉस्ट इट्स क्रेडिट वर्थिनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, the government mortgaged 40 tons of gold to the Bank of England। ये बड़ी उस समय बेइज्जती हुई थी देश की। इंडिया का जो रेटिंग था वो खराब हो गया था, यानी बाजार में इसका साख बोलते हैं हिंदी में, साख बिल्कुल डूब गई थी भारत की। क्रेडिट को हिंदी में कहते हैं साख। तो भारत का जो रेपुटेशन था बिजनेस, साख थी जो इसकी डूब गई। और क्या हुआ, हमारी सरकार को अपना 40 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, कि भाई हमें डॉलर कुछ दीजिए या पाउंड दीजिए, हमारा सोना गिरवी रख लीजिए तब तक। तो पहली बार हुआ था कि कोई इस तरह के बड़े देश को अपना गोल्ड रिजर्व जो है वो गिरवी रखना पड़ा था। इंडिया के लिए बड़ी बेइज्जती की बात हुई थी। ऐसी हालत हो गई थी इकोनॉमी की कि जो है हमें पैसा देने के लिए नहीं था। तो हमें जैसे कैसे होता है फिल्म में देखते हैं कि आदमी के पास खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं है, तो अपना सामान गिरवी रखता है, जाके कोई ज्वेलरी या कुछ गिरवी रखता है महंगा सामान, कि भाई हमें पैसा इसके बदले दे दीजिए, अभी ज़रूरत। वही हाल हुआ था इंडिया का। अपना जो इसके पास रिजर्व था थोड़ा बहुत सोना, तो अपना सोना जो है वो उसको जाके गिरवी रखना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, भारत सरकार। Under these circumstances, the government for 1991-92 presented its budget in July 1991 with a series of policy changes which underlined globalization, liberalization and privatization। तो ऐसे हालात जब देश में चल रहे थे, उस हालात के बीच में सरकार ने उस साल का बजट जुलाई में पेश किया। सामान्यतः बजट आता है फरवरी मार्च में, लेकिन उस साल चूंकि सरकार जून में बनी थी, तो जून के बाद जुलाई में सरकार ने एक नया बजट पेश किया, और उस बजट में उन्होंने नई अपनी नीतियां रखी थी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की। अब ऐसा ऐसा किया जाएगा देश की हालत को देखते हुए। दिस हैज कम टू बी कॉल्ड एज इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसी को हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। These policies were strengthened when India signed the Dunkel Draft in 1994। तो ये जो पॉलिसी इंडिया में लाई गई 1991 में, एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली क्या था, देखिए हुआ क्या था, लाया कुछ नहीं गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को जब हमने सोना गिरवी रखा, तो इन्हीं शर्तों पर उन्होंने पैसा दिया था हमें, कि देखिए हम पैसा तो आपको दे रहे हैं, आपकी ऐसे समय में मदद कर रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया के पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो इसका सारा विदेश व्यापार रुक जाता। तो ऐसे समय में हम मदद मांगने गए बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो वहाँ का मेन बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, वैसे ही उस बैंक वहाँ का इंग्लैंड का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये शर्तें रखी कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारी ये शर्तें माननी होंगी। तो क्या, तो नंबर 1, हमारी कंपनियों को अपने देश में आने काम करने के लिए आपको फ्री देना पड़ेगा, कि हाँ हमारे देश या दूसरे देश की कंपनियां वहाँ फ्रीली अपना जाके बिजनेस कर सकें, या वहाँ से जो हम अगर यहाँ लोग आना चाहें काम करने के लिए। तो ये जो भी कुछ था बेसिकली एक तरह से उनकी शर्तें थी, आप ये भी समझिएगा, और उन्हीं शर्तों को लागू किया गया था। ये बात कम लोग जानते हैं, बताते हैं। उन्होंने, देखिए आप जानते हैं, देखते हैं ना, कोई मदद करता है तो कुछ शर्त रखता है, फिल्मों में भी देखते हैं, लाला लोग पैसा देता है कुछ शर्त पर, या कोई भी
पैसा देता है तो कुछ उस पर कंडीशंस होता है कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो वैसे उन्होंने जो हमें इतना बड़ा पैसा का हेल्प किया था तो उसके बदले कुछ शर्तें रखी थी और वो शर्तें ही जो है यहाँ लागू की गई थी, ठीक है। तो जिसको कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। ये कोई बड़ी खुशी राजी से नहीं किया था सरकार ने, ये प्रेशर में करना पड़ा था सरकार को और कोई चारा नहीं था। फिल्म में देखते हैं ना, जब कोई परिवार की हालत खराब हो जाती है तो किसी से जाता है, पैसे लेता है, किसी से उधार लेता है, तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे करना होगा, तो वो बेचारा मजबूरी में शर्तें मानता है, क्या करेगा, उसको मदद की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह यहाँ जो है ये हमने लागू किया था, वो नियम कानून बदले थे अपने, सब कंपनियों को फ्री किया था यहाँ आने जाने के लिए, विदेशी कंपनियों को। तो उसी को हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आगे कह रहा है कि दीज पॉलिसीज वर स्ट्रेंथेंड when India signed the Dunkel draft in 1994। 1994 में इंडिया ने एक साइन किया था डंकेल। उस समय जो है WTO नहीं था, तो उस समय देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि आगे चल के सभी देश एक दूसरे को अलाउ करेंगे अपने यहाँ बिजनेस करने देने के लिए, अपने यहाँ लोगों को आने जाने देने के लिए। तो इन सब पर दुनिया भर में व्यापार कैसे होगा, उस पर कुछ नियम कानून बने थे, उन्हीं को बोला गया था डंकेल ड्राफ्ट। क्योंकि डंकेल जो थे उसके चेयरमैन थे, जो बनाने वाली टीम थी नियम कानून, और उन्होंने जो एक ड्राफ्ट यानी जो पहले रफ कॉपी जो होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं, तो उन्होंने जो बनाया था रफ कॉपी नियम कानून पर, जिसको कि सबने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसीलिए उसको कहते हैं डंकेल ड्राफ्ट। और इसी के बाद इसी नियम कानून के आधार पर बना था WTO आगे चल के। तो इस डंकेल ड्राफ्ट पर इंडिया ने साइन कर दिया था 1994 में, जिससे कि और ये पॉलिसी पक्के तौर पर लागू हो गई थी। तो ये था डंकेल, हिंदी में इसको डंकेल समझौता कहते हैं या डंकेल मसौदा कहते हैं। तो ये WTO के पहले का चीज था, तो इसको भी इंडिया ने साइन किया था डंकेल ड्राफ्ट को, यानी वर्ल्ड ट्रेड के लिए जो नियम कानून तय किए गए थे उस पर एग्रीमेंट अपना दे दिया। नाउ तो अब जब ये पॉलिसी आई तो देखिए क्या होना था, देखिए रिफॉर्म्स मेड टू अडॉप्ट ग्लोबलाइजेशन, क्या सुधार किए गए इस ग्लोबलाइजेशन को देश में लाने के लिए, जिसको कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। क्या क्या इसमें किया गया था, अब उसको डिटेल में देखेंगे। नंबर 1, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंडस्ट्रीज, यानी केवल कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जो देश के लिए बहुत जरूरी या कुछ खास जिनका महत्व, उनको छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए अब किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। लाइसेंस का मतलब होता है सरकार से परमिशन। तो इससे पहले मैंने बोला कि बहुत टाइट था, हर चीज के लिए सरकार से परमिशन लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको कि लोग इतना ज्यादा टाइट कर दिया था कांग्रेस के सरकार में उस समय, कि लाइसेंस राज कहने लगे थे कि लाइसेंस राज चल रहा है, लाइसेंस राज चल रहा है, हर चीज के लिए लाइसेंस, और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सरकार कहेगी तो करना है, नहीं तो नहीं करना। तो ये लाइसेंस राज एक तरह से खत्म हो गया। अब जो है केवल कुछ जो बहुत ही जरूरी या कुछ खतरे वाले या इस तरह की इंडस्ट्री, उनको छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रीज में अब कोई तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसी को कहा है एबोलिशन, यानी कंप्लीट रिमूवल, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़े, उस खत्म कर दिया गया कुछ को छोड़ के। नंबर 2, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। पहले क्या थे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को रिजर्व कहा जाता कि ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, इसमें प्राइवेट लोग काम नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, वो रिजर्व होते थे पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, उनको जो है बहुत कम कर दिया गया। अब बहुत कम इंडस्ट्रीज को सिर्फ रखा गया गवर्नमेंट के लिए रिजर्व, बाकी सबको प्राइवेट के लिए खोल दिया गया, जिसको हमने कहा प्राइवेटाइजेशन। एंड नंबर 3, फिक्सेशन ऑफ अ रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी टू एक्सचेंज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। जो
एक एक्सचेंज रेट कहते हैं, आप जानते होंगे शायद एक्सचेंज रेट, यानी हमारी करेंसी और किसी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी में कैसे अदला बदली होगी, कितने के बदले कितना दिया जाएगा, इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे कभी हम कहते हैं कि डॉलर का आज वैल्यू है 60 रुपये, ये एक्सचेंज रेट हुआ कि $1 दीजिएगा तो उसके बदले आपको 60 रुपये मिलेंगे, या 60 रुपये दीजिएगा तो $1 मिलेगा, या ट्रेडिंग हो रहा है तो $1 के बदले आपको 60 रुपया देना पड़ेगा। तो ये जो है एक्सचेंज रेट इसको कहते हैं, एक्सचेंज का रेट। अगर करेंसी एक्सचेंज करना है तो उसका रेट, तो $1 के बदले कितना रुपया होगा, £1 के बदले कितना रुपया होगा, €1 के बदले, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो उस समय हमें अपना एक्सचेंज रेट बहुत घटाना पड़ा था, यानी रुपया का वैल्यू कम हो गया था, डॉलर का बढ़ गया था। कि पता चला कि पहले था 20 रुपया, एक डॉलर के बदले 20 रुपया ही 20 रुपया देते थे, बाद में करना पड़ गया कि 40 रुपया देंगे $1 के बदले, रुपया का यानी वैल्यू घट गया था। तो ये भी एक मतलब बेइज्जती थी, रुपया करेंसी का वैल्यू आपके देश की प्रेस्टीज को बता, जैसे देखिए डॉलर का आज कितना वैल्यू है, तो इसका मतलब यूएस का वैल्यू है। कल को यूएस का इकोनॉमी डूब जाएगा तो डॉलर का भी कोई पूछेगा नहीं, डॉलर का वैल्यू भी गिर जाएगा। तो हमें रुपया का वैल्यू घटाना पड़ा था। तो यही यहाँ कहा जा रहा है, फिक्सेशन ऑफ अ रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी, यानी एक जो उस समय का वास्तविक में एक जो एक्सेप्ट करते लोग इस तरह के हालात में, ऐसा हमें रुपया का एक्सचेंज रेट बेसिकली घटाना पड़ा था। फिक्सेशन यानी तय करना, ऑफ अ रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी टू एक्सचेंज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स, कि अगर आपको भाई सामान बाहर बेचना है तो आपको अपना रुपया का वैल्यू घटाना पड़ेगा, तब लोग खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे। देखिए ये क्या होता है, कई बार एक शर्त भी होता है, उससे हमारा घाटा होता है कि हमें रुपया का वैल्यू घटाना पड़ा, यानी कल तक हमें अपनी चीज़ों के लिए जो ज़्यादा कीमत मिल रहा था, अब हमको उसको कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रुपया के बदले रुपया का वैल्यू घट रहा है, तो कल तक यानी जिस चीज़ के लिए हमें अगर 100 रुपया मिलता था, उस चीज़ के अब हमको उसके बदले 50 रुपये ही मिलेंगे, अगर आधा हो गया वैल्यू। तो इसका मतलब बेसिकली हुआ कि हमारी चीज़ों का दाम हमें कम लेना एक्सेप्ट करना पड़ा, कि ठीक है भाई, जो कल तक आप उस चीज़ के लिए 100 रुपये देते थे, हमको आज 85 रुपये दीजिएगा। तो एक तरह से रुपया का एक्सचेंज रेट कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्राइसेस कम हो गए। हमको एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई देखिए, अब 2 लाख का गाड़ी है या कोई सामान है, 2 लाख मिलता था, अब हम उसको 1 ही लाख में बेच देंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना पड़ा, क्या करते। नाउ नंबर 4, फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बाय मेकिंग रूपी कन्वर्टिबल ऑन ट्रेड ऑन करेंट अकाउंट एंड बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। विदेशी कंपनियों को भी हमें अपने यहाँ हर तरह का सुविधा देना, यानी कि किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह की कंपनी किसी भी तरह का बिजनेस कर सकती हैं यहाँ, और हमें रूपी को कन्वर्टिबल करना पड़ा ट्रेड करेंट अकाउंट और इंपोर्ट ड्यूटीज में। इसको अभी नहीं समझिएगा, बाद में बताएंगे। इसको कन्वर्टिबल कहते हैं कि किस किस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपना पेमेंट को रुपया में। ठीक है, तो उसको हमें यहाँ आप इतना समझिए कि हमें ट्रेड अकाउंट होते हैं कई तरह के, मैंने बताया, तो एक ट्रेड अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। तो ट्रेड अकाउंट में भी कन्वर्टिबल करना पड़ा, करेंट अकाउंट में भी कन्वर्टिबल करना पड़ा, एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, और जो इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाते थे विदेशी कंपनियों पर, वो हमें कम करना पड़ेगा। पहले हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे विदेशी कंपनियों पर, तो वो यहाँ सामान बेच नहीं पाते थे, क्योंकि टैक्स की वजह से सामान उनका महंगा हो जाता था, तो कोई खरीदता नहीं था उतना महंगा। तो इसके लिए उन्होंने दबाव डाला कि आपको हम पर से टैक्स कम करना पड़ेगा, तो टैक्स हमने कम किया और वो फिर उनका सामान बिकने लगा।
आज आपको विदेशी कंपनियों का, जैसे मैंने ही अभी आपको कहा कि एमआरपी से इतना छूट देके मुझे एचपी का डीवीडी मंगाया, पहले जैसा हाल रहता तो पता चलता है कि एमआरपी है उससे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स अलग से लगा रही है भारत सरकार। तो महंगा होता तो मैं खरीद पाता, मैं कहता भाई यहीं का खरीद लो, सस्ता है। तो इतना सस्ता मुझे कैसे मिल रहा है विदेशी कंपनी का, क्योंकि आज उस पर टैक्स लगभग नहीं के बराबर, बहुत कम। तो आज मुझे एमआरपी से भी कम पर मिल रहा है। नंबर 5, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस वर सुटेबली अमेंडेड। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस होता है जिसको उस समय कहते थे फेरा और अब कहते हैं फेमा। फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा जो था, लिख लीजिए, FERA, बहुत कड़ा कानून था फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में उसमें सुधार करके उसका नाम कर दिया गया फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो रेगुलेशन से बदल के हमें उसका मैनेजमेंट पर आना पड़ा। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अपना व्यवस्था ठीक करना। तो उन्होंने कहा कि भाई अब कंट्रोल नहीं कीजिए, आप मैनेज कीजिए खाली। आप बॉस नहीं हैं, अब आप मिलजुल के काम करने वाले हैं, तो आप मैनेजमेंट करिए। पहले क्या था? फॉरेन फेरा कानून लागू होते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसमें था कि कोई आदमी कितना डॉलर का इस्तेमाल कर सकता है, कितना डॉलर अपने साथ ला सकता है, ले जा सकता है, या कितना डॉलर से रुपया कन्वर्ट करवा सकता है बैंक से, उस पर एक लिमिट होता था कि एक बार में या इतने दिन में आप इतना ही डॉलर यूज कर सकते थे, और अगर उससे ज़्यादा किया तो गिरफ्तार हो जाते थे, कड़ी सजा थी उसमें, क्योंकि स्मगलिंग बहुत लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो या स्मगलिंग, और दूसरा काला ब्लैक मनी, पैसा अपना कहीं कहीं जमा करते थे विदेशी बैंकों में, तो उस पर जो है फेरा लगता था। अब जो है उसको कर दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसमें कुछ लिमिट जो है बढ़ा दी गई, उसमें नियम कानून कुछ ढीले कर दिए गए, इतने कड़ा नहीं रहा उसका, लेकिन अभी भी फेमा कड़ा है, उसमें जेल वेल हो जाते हैं ज़्यादा आप पैसा का। और उसमें एक कानून जो मैंने कहा, बाहर आप गलत तरीके से पैसा यूज करते हैं, कहीं जमा करते हैं वगैरह, या ब्लैक मनी करते हैं, उसके लिए है, उसको कहते हैं PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोला जाता है। हिंदी में इसको धन शोधन अधिनियम कहते हैं। तो अब समझिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, लॉन्ड्री से वर्ड है, तो लॉन्डर का मतलब होता है धोना, साफ करना। तो काला से आप सफेद बना देते हैं समझ गए? काला जो पैसा है यानी नोट गंदा है ऐसा नहीं है कि नोट गंदा होता है। ब्लैक मनी को आप व्हाइट बना देते हैं, उसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। होता क्या है, आपका ब्लैक मनी है यानी आपका अनअकाउंटेड पैसा है जिसका आपने हिसाब किताब नहीं दिया है, उस पैसा को कहीं कहीं किसी के माध्यम से लाकर फिर कहीं उसको इन्वेस्ट करवा देते हैं और उसका हिसाब किताब करवा देते हैं। तो वो पैसा पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ा, आपने टैक्स बचा लिया। तो इसको रोकने के लिए कानून बना, उसको नाम दिया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें अगर आप कहीं भी बाहर पैसा कहीं भेजते हैं गलत तरीके से, या बाहर जमा किसी बैंक में करते हैं, या किसी गलत तरीके से कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा को गैर का, तो उसमें यही धारा लगती है, कानून लगता है PMLA। इसके तहत कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी वगैरह होती है। जानकारी के लिए बता दिया, यहाँ तो अभी नहीं था। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन यानी नियम कानून थे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, उनको जो है वाज सुटेबली अमेंडेड, उनको
मौजूदा समय के हिसाब से उसमें बदलाव किया गया। मैंने बताया कि फेरा था पहले, उसको फेमा कर दिया गया, उसमें बहुत सारे हल्के कर दिए गए, नियम कानून आसान बना दिए गए, लिमिट बढ़ा दिया गया। पहले बहुत कम लिमिट होता था कि आप मात्र एक आम आदमी है तो 10-20 डॉलर बस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, किस लिए करेगा, कहने का मतलब था सरकार। लेकिन अब कर दिया गया कि नहीं भाई, $500 तक आप हर कोई आदमी, आम आदमी भी कर सकता है यूज कहीं जाए। या आप बाहर से आ रहे हैं तो कितना डॉलर अपने साथ ला सकते हैं। तो उन सब इस तरह बहुत से नियम कानून होते हैं। ये तो मैंने एक प्राइवेट एक आम आदमी के उस पर बताया। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो कितना अपने साथ बिजनेस में कहीं ले जा सकता है, ला सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, या मंथ में कितना डॉलर से, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो उस सब को समय के अनुसार थोड़ा बहुत ही सिंप्लीफाई, फ्लेक्सिबल कर दिया गया था। एंड नंबर 6 was, ये स्टेप्स, अब इसको जो है इस पेज को निकाल लीजिएगा, ठीक है, इस पेज को प्रिंट कर लीजिएगा। द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR was reduced to increase lending by RBI। अब देखिए आ गया SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में आपको बता रहा था कि मैंने बताया था, जब बैंकिंग के बारे में आपको बता रहा था, मैंने कहा था कि बैंक जो पैसा जमा लेते हैं लोगों से, फिर उसको वो लोन उधार के रूप में लोगों को वापस देते हैं, उसी से उनका काम चलता है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारा जो आया पैसा सबका सब दे दिया, अब कल को कोई आएगा अपना पैसा मांगे तो वो कहाँ से देगा। तो इसी का सुविधा बनाए रखने के लिए एक मिनिमम वैल्यू कैश के रूप में उन्हें अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो इस पर आरबीआई ने एक कानून बनाया, एक नियम बनाता है समय समय पर कि इतना परसेंटेज अपने डिपॉजिट का आपको कैश के रूप में रखना ही होगा हमेशा अपने ब्रांच में, अपने जहां जहां है। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। स्टैट्यूटरी मतलब होता है कानूनी, स्टैट्यूट होता है कानून को बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी यानी जो कानूनी रूप से है, फोर्सफुल कि आपको करना ही है, यू आर बाउंड बाय द लॉ, स्टैट्यूटरी। लिक्विडिटी कहते हैं कि मनी, कैश के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कैश। रेशियो का मतलब रेशियो यानी अपना जितना टोटल आपको डिपॉजिट मिला है, आप कामकाज जितने पैसे का कर रहे हैं, उसका एक सर्टेन परसेंट आपको हमेशा अपने पास कैश में रखना होगा, ताकि कोई आए पैसा लेने तो उसको लौटा नहीं दे बोल के कि पैसा खत्म नहीं है, अपना ही पैसा मांगने और आप उसको कह रहे हैं कि अभी पैसा नहीं है भाई, अब नहीं दे सकता। तो इसको कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जनरली ये जो है आप देखिए, इसमें एक और टर्म आता है CRR, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये थोड़ा सा अलग होता है। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है कि आपको डेली डीलिंग के लिए इतना आपको कैश रखना होगा, और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कि इतना आपको कैश अपने रिजर्व में कहीं रखना होगा, बैंक में, ब्रांच में जरूरी नहीं, लेकिन कहीं रखना होगा ताकि उसको आपको जरूरत हो तो तुरंत उसको इस्तेमाल कर सके। तो देखिए, अगर बैंक क्या सोचते हैं कि भाई पैसा अगर हम कैश में रखे रहेंगे, वो पैसा ऐसे ही पैसा पड़ा रहेगा, कोई मांगने आएगा तब ना, जब तक नहीं कोई ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वो तो पैसा हमको रखना है, एज सच मेंटेन करके गोदरेज में बंद रखना है, उसका कुछ हम नहीं कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा आए उसको हम बाहर लोन के रूप में दे दें, ताकि उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे। तो ये बैंक की सोच होती है। तो बैंक सोचता है कि हम पैसा रख के ज्यादा क्या करें, जितना आया है सबका सब दे दे लोन पर, उससे हमको पैसा का कमाई होगा, लालच। लेकिन आरबीआई कहती है कि देखो, इतना तुमको अपने पास रखना है, कभी कोई इमरजेंसी में आ गया, कोई भी आ गया, उसको देना है, तो तुम तो उसको दोगे नहीं पैसा, जब सब दे ही दोगे तो इतना आपको अपने पास रखना है पैसा कैश के रूप में। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये कैश के रूप में जरूरी नहीं होता है,
मतलब कोई भी ऐसी चीज के बारे में आप की तरह रख सकते हैं जिसको आप तुरंत कैश करा सकते हैं, जिसको आप जैसे जरूरत पड़ा, लोग आए मांगने तो आपने कहा कि अच्छा रुक जाइए 2 घंटा हम आपको दे देते हैं, तो आपने उस चीज को कैश में कन्वर्ट किया तुरंत और उसको दे दिया। तो SLR एक होता है और एक CRR होता है, जिसको टाइम टू टाइम RBI इसका घटाता बढ़ाता रहता है। CRR जो है जनरली रहता है आपका 7-8%, 10% इसके आसपास, बढ़ा बहुत ज़्यादा तो 10%, कम कर दिया तो 5-6% तक भी रहता है या 4% तक भी रहता है। SLR जो है वो ज़्यादा रहता है, ये रहता है लगभग 24-25% कई बार रहता है। तो अभी हमको उसका डिटेल में नहीं जाना है, बस चूंकि आ गया तो हम आपको बता दिए कि SLR क्या होता है। RBI का जब डिटेल पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो SLR जो है उसको कम कर दिया टू इंक्रीज लेंडिंग। भाई नेचुरल है, अपने पास कम अगर कैश रखना होगा तो उतना कैश वो और ज़्यादा पब्लिक को दे सकता है, यानी लेंडिंग उधार देना बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक तो यही चाहते हैं कि भाई इतना हम रख के क्या करें, कोई मांगने आता नहीं, इतना जितना ज़रूरत है उतना रहता है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार पर देंगे तो तेज़ी से कामकाज होगा, आप कमाएंगे। तो उनकी सुविधा के लिए RBI ने SLR को घटा दिया कि अच्छा इतना ही परसेंटेज आपको रखना होगा। पहले 25% अगर होगा तो उसको कर दिया कि ठीक है आप 15% रखिए, बाकी 10% आप अपना फर्दर यूज कर सकते हैं। तो SLR को भी घटाया था RBI ने। ये स्टेप्स 6 स्टेप्स जो है मेजर तौर पर लिए गए थे इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बता चुके हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन which owns or controls production of goods or services in at least one country other than its home country। कहा जा रहा है कि ऐसी कंपनी जो कम से कम अपना देश छोड़ के एक और देश में वहां प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या वो ओनर है उसकी, ऐसी कंपनी को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ MNC देखिए, लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी which came to India as a trading company and then its net throughout the country to become political dominant। तो कहा जा रहा है कि MNC जैसे उस समय आया था ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ, पहले तो आया था व्यापार ही करने, फिर देखा धीरे धीरे कि भाई यहाँ लोग ठीक नहीं, इसको हम अपना कब्जे में लेके फायदा ज़्यादा कमा सकते हैं, तो यहाँ उन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया था। उसी तरह कोई भी कंपनी जो किसी देश में जाती है व्यापार करने और अगर देखती है कि वो वहाँ अपना प्रभाव बढ़ा सकती है तो वो कोशिश करती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव फैलाने का, भले इकोनॉमिक खाली इन्फ्लुएंस हो, तो वो कोशिश करती है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए कर सके। खैर आज देखिए, यहाँ से देखिए, मोस्ट ऑफ the MNCs at present belong to the 4 major exporting countries। आज ज़्यादातर जो MNC हैं मल्टीनेशनल कंपनीज वो बेसिकली 4 बड़े देशों की कंपनियां हैं, विच USA, अमेरिका, UK, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। इन 4 देशों की ही ज़्यादातर जो है MNC है। However, the largest is अमेरिकन, सबसे बड़ा जो है अमेरिका का इकोनॉमी। 11 ऑफ द 15 लार्जेस्ट मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन। दुनिया की जो 15 अगर सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें 11 जो है वो अमेरिका की ही, तो अमेरिका का बिजनेस के फील्ड में तो दबदबा है। ग्रोथ ऑफ MNC इन इंडिया, कैसे भारत में MNC का डेवलपमेंट हुआ। A common form of MNC participation in Indian industry is through entering into cooperation with Indian industrialists।
एमएनसी का भारत में आने का एक कॉमन तरीका है कि वो यहाँ की कंपनी के साथ मिलजुल के कोई काम करते हैं। ट्रेंड्स of liberalization in the 1980s gave a substantial spurt to foreign collaborations। जो लिबरलाइजेशन किया गया यानी नियम कानून आसान किए गए, लाइसेंस व्यवस्था हटाई गई, ये सब किया गया, तो उससे विदेशी कंपनियों के यहाँ आने, स्पर्ट का मतलब होता है तेजी मिलना, तो विदेशी कंपनियों को यहाँ के कंपनी के साथ साठगांठ जो करते हैं, कोलैबोरेशन बोलते हैं, मिलजुल के काम करना, कोलैबोरेशन। तो फॉरेन कोलैबोरेशन में बहुत तेजी आई लिबरलाइजेशन के बाद। This would be clear from the fact that of the total 12,760 foreign collaboration agreements signed between 1948 to 1988, तो ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि 1948 से 88 के बीच में 12,760 फॉरेन कोलैबोरेशन साइन किए गए, ऐसे एग्रीमेंट विदेशी कंपनियों के साथ साइन किए गए। एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, announced in 1991, there has been a further spurt of foreign collaborations and increased inflow of foreign direct investment। 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद से और तेजी आई है ऐसे फॉरेन कोलैबोरेशंस में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हमारे देश में आने में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ है, तेजी से बढ़ा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई गेस आपको ध्यान है। तो एफडीआई यानी कि जो फैक्ट्री लगाया, यहाँ पैसा लगाया, कुछ बनाया, होटल बिल्डिंग जो भी कुछ मशीन लगाया, एफडीआई। तो एफडीआई में तेजी से इंक्रीज हुआ ये 1991 के बाद। अब हम लोग ये रीजंस जो हैं इसको छोड़ देते हैं, अभी ये मेंस का टॉपिक है, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो नीचे एक टेबल दिया हुआ है, खाली उसको देख लेते हैं। टॉप 10 लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया 2018। दो 2018 में जो इंडिया में सबसे बड़े 10 मल्टीनेशनल कंपनीज थे, देखिए सबसे बड़ा क्या है, सोनी कॉरपोरेशन, फिर नेस्ले, नेटले वो NES है, नेस्ले, नेस्ले, देन ह्यूलेट पैकार्ड HP, प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG, जिसका कि कोलगेट और बहुत सारा चीज आता था, कोलगेट पहले, कोलगेट, अभी पेप्सोडेंट और भी कई बहुत सारी चीजें आता है, वो है अमेरिका की कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। जैसे कोलगेट जो ब्रांड था, अभी पता नहीं, अभी भी शायद उसी का या हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद लिया इसको, ये बेसिकली था प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का। तो जो पहले आपका आता था कोलगेट का टूथ पाउडर और फिर पेस्ट और भी बहुत सारी चीजें आती थी। हाँ, हाँ सब वहीं का है, इसी का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, अमेरिका ही का है। हाँ देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर और क्रीम बहुत सारा आता था पहले, अभी भी आता है, नामी था, आज भी आता है नामी। तो वो भी देखिए अमेरिका का था, जॉनसन, वो भी शायद इसी का था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी थी। खैर, ह्यूलेट पैकार्ड HP हो गया। फिर टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप हमारे देश का कंपनी,
देन सिटी ग्रुप है सिटी बैंक जिसका है, ठीक है, सिटी ग्रुप कहते हैं उसको। सिटी बैंक है, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक में से है, यहाँ भी बहुत उसका है काम, सिटी बैंक। तो सिटी बैंक हो गया, सिटी ग्रुप। देन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जान ही रहे हैं। पेप्सी कंपनी, पेप्सी को जान ही रहे हैं। पहले ये सब पेप्सी का ही था, और ये जो जितना था दो ग्रुप में था, जितना एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिकता था, एक था पेप्सी और दूसरा कोका कोला। तो बाद में सबको कोका कोला ही नहीं खरीद लिया बाद में। आईबीएम, आईबीएम तो जान ही रहे हैं, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये और द कोका कोला कंपनी, ये 10 जो है इंडिया में ऑपरेट करने वाले 10 बड़े मल्टीनेशनल 2018 में थे। अब देखिए लिस्ट है आपका इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज, नीचे नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इंडियन मल्टीनेशनल, इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनी कौन कौन है? सबसे पहले हीरो मोटर्स, हीरो मोटो कॉर्प लिखता है, हीरो मोटर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल। कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन कोलंबिया, बांग्लादेश और अफ्रीका, यहाँ यहाँ ये ऑपरेट करते हैं, कोलंबिया में, बांग्लादेश में और अफ्रीका में। बजाज हेडक्वार्टर पुणे, इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल, और बजाज का बहुत सारा है, तो अलग अलग कंपनी है, बजाज ग्रुप है, ठीक है, बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उसमें बजाज इलेक्ट्रिक अलग है, बजाज ऑटोमोबाइल है, बहुत सारा, बजाज का तो बहुत काम है, जैसे टाटा है वैसे। तो यहाँ हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, बजाज ऑटोमोबाइल्स, और इसका कहाँ कहाँ है ऑपरेशन? यूएई और बांग्लादेश, उस समय की 2018 की बात है। फिर टीवीएस हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, ऑटोमोबाइल, और इसका कहाँ कहाँ है? ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ये भी एक मल्टीनेशनल है, हेडक्वार्टर मुंबई, इंडस्ट्री है बैंकिंग। कहाँ कहाँ इसका ऑपरेशन है ज़्यादा? ऐसे तो बहुत जगह ब्रांच है इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विदेशों में लगभग सभी देशों में ब्रांच है, मेजर कंट्रीज में। लेकिन ज़्यादा जहाँ ब्रांचेज और ज़्यादा ऑपरेशन है कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम। भारती एयरटेल, एयरटेल जिसको कहते हैं, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। टाइप ऑफ इंडस्ट्री कम्युनिकेशन, और कहाँ कहाँ? साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया यानी इंडिया के आसपास के सभी देशों में काम करता है। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, इधर हो गया अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, तो सब साउथ एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका में भी इसका काम है। अब इसमें है कुछ कुछ दिया हुआ, ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एमएनसी के, इसको भी छोड़ देते हैं, मेंस के लिए है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन आपको कर ही दिया है, और अभी इसको बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं। अब आते हैं 2.6, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए अब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा समझेंगे।
व्हाट आर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए, आप कहीं सामान लेने जाते हैं, आप जाते हैं कि हाँ हम कोई सामान, मान लीजिए फिलिप्स का आप कुछ लेने जाते हैं, दुकानदार क्या करता है, आपको डुप्लीकेट सामान दे देता है। देखने में तो लगता है फिलिप्स का, लेकिन पता चलता है आप जब उसको यूज़ करते हैं कि ये तो बढ़िया काम नहीं कर रहा है, पता चलता है, और बिल नहीं देता है। ये क्या हुआ? चीटिंग। तो इन सब चीज़ों को, कि कोई दूसरा सामान दे देना, बिल नहीं देना, या सामान खराब है आप जाते हैं उसको दिखाने तो कहता है भाई हमारा गारंटी नहीं है, अब आप ले गए तो ले गए, ये सब है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से ट्रेड करना। उसी तरह जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग बिजनेसमैन या लोग सोचते हैं कि ये सही नहीं है, उसको हम कहते हैं अनफेयर, और जो हम मानते हैं कि ऐसे होना चाहिए उसको कहते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखते हैं क्या है। देखिए, फेयर ट्रेड इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस that ultimately aims to keep small farmers an active part of the world marketplace and aims to empower consumer to make purchases that support their values। देखिए, दुनिया भर में आप देखिएगा मोटे तौर पे तो कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है? किसान और आम आदमी, किसान और आम आदमी। और आम आदमी में क्या है, ज़्यादातर लोग जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत लोग तो अनपढ़ भी हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं, मतलब काम चलाओ पढ़े लिखे हैं। अब काम चलाओ पढ़े लिखे का मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक चचेरे भैया हैं, उनसे बीए पास, कहने के लिए बीए पास थे, उनके पिताजी ने कहा, मतलब बड़े, मैं शादी के समय की बात बता रहा हूँ, जब उनकी शादी हो चुकी थी, उनको कहा गया कि भाई जाओ जरा कोलगेट ले आओ दुकान से, सामने ही दुकान थी घर के, गए उठा के ले आए, तो चाचा जी ने कहा ये क्या क्लोजअप उठा के ले आया, कोलगेट बोले थे, दूसरा उठा के ले आया। हम क्या जाने कोलगेट कौन है, क्लोजअप कौन है, हम उसको कहे देने के लिए, दे दिया, हम लेके चले आए। हम लोग बहुत हंसे थे, छोटे बच्चे थे, कि बताइए बीए पास है, इनको कोलगेट क्लोजअप फर्क नहीं बुझाता है। तो ये हाल है लोगों का हमारे यहाँ के। अब यही हर देश में हाल है, यही हर देश में हाल है कि कहने के लिए पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन पहले तो बिहार में डिग्री बढ़ता था खाली। पहले तो क्या था हाल बिहार में, पिछले 30-35 सालों में क्या हाल था, या उससे और पहले मान लीजिए, कि खाली नाम का डिग्री मिल जाता था, पेपर कैसे कैसे कोई और पेपर लिख दिया या चोरी हो गया, कुछ हो गया, पास कर गए, डिग्री मिल जाता था, ये हाल था, और शादी वादी हो जाती थी। हमारे बहुत, हम अपने परिवार में जानते हैं बहुत ऐसे लोग को, चचेरे भतीजे वगैरह बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम का डिग्री है, वो पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, कैसे कैसे जो है क्या किए हैं, जानते कुछ नहीं थे, डिग्री मिल जाता था, क्योंकि भाई परिवार का नाम था तो लोग टीचर भी पास कर देते थे, या कॉपी कोई लिख देता था, कैसे कैसे करके डिग्री हो जाता था। तो इधर व्यवस्था ठीक होनी शुरू हुई, और इधर तो मतलब मानिए कि इधर 10 सालों से बिहार बोर्ड का हालत सुधरा है, जब से आनंद किशोर वगैरह आए हैं यहाँ, तब से हाल सुधरा। आनंद किशोर ने बहुत काम किया, जो अभी है एग्जाम बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो ये सब लोग काफ़ी काम किए हैं बिहार में शिक्षा को सुधारने में। तो पहले तो एकदम डामाडोल था बिहार में, और इंजीनियरिंग का तो इतना फेक डिग्री और हर तरह का डिग्री यहाँ फेक मिलता था कि बिहार को फेक डिग्री का अड्डा बना दिया था लोग। पूरे भारत से कहीं से भी किसी को फेक डिग्री चाहिए होती थी तो बिहार आके डिग्री ले लेता था, ये हाल था। अभी एक टीचर है हमारी जानकारी में, जो मैडम के स्कूल में लेडी टीचर है, अब बताइए उनका सारा डिग्री है नागालैंड का, तो क्या क्या वो करने, और नागालैंड का डिग्री दिखा के, और आता जाता कुछ है नहीं, इसलिए क्लास नहीं लेना चाहती, कि क्लास में डरती है, कोई कहा जाता है क्लास में लेती नहीं, बुझाता कुछ नहीं, समझे क्या धंधा हो गया, मतलब क्या बोले। अभी कल हम देख रहे थे, एक आईएएस बन गई फर्जी, ऐसे ही आईएएस बनी हुई थी, और मतलब बहुत दिन तक बहुत
हाँ हाँ, महाराष्ट्र की जो है, बता रहे वो क्या नाम है उसका? पूजा खेड़कर की क्या नाम? हाँ, खेड़कर, हाँ। हाँ, तो मतलब आश्चर्य हुआ, कल हम ऐसे ही कुछ देख। बहुत बात की है, मतलब एज खत्म हो गया था उसके बावजूद हाँ वही कह रहे हैं, मतलब कल, का सर्टिफिकेट बनवा हाँ के। कल कुछ अचानक हम देख रहे थे, नजर पड़ा तो उसका, देखने लग गया क्या बात है, तो हम देख रहे हैं कि बताइए क्या गोरख धंधा है भाई, आईएएस आदमी कैसे कैसे हो जा रहा है, मतलब आज कोई मतलब ही नहीं रहा ये सब का जो है, फर्जी दे के और फिर सर्टिफिकेट फर्जी और क्या क्या फर्जी दे के, और फिर उतना ही नाटक की है जो है, सर्विस में भी मैंने जब सिलेक्शन दिखाया और हो गया है जो भी है, तो उतना ही सबको तंग कर रही थी, तब जाके जांच बैठी है तो पता चला है कि ये है, मतलब बताइए फर्स्ट क्लास दिख रहा है और लिखी हुई कि ब्लाइंड है हम, ब्लाइंड का सर्टिफिकेट, और वो भी कहाँ कहाँ से फर्जी बनवा लिए, एम्स में बुलाया गया चेकअप के लिए तो गई नहीं वहाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, वैसे ही बताया ना कि यहाँ गवर्नमेंट टीचर हो गया है इसमें, और दिखाती है तो, और कहाँ से डिग्री तो फर्जी दिखाती, नागालैंड, बिहार के गांव की, और नागालैंड से क्या डिग्री लेगी भाई, तो फेक डिग्री होगा। अब कोई उठाएगा शिकायत कर देगा तो पकड़ाएगी, और क्लास लेने कहा जाता है तो नहीं लेती है, कुछ बोलती है कि जो है नहीं लेंगे, नाटक बहुत वैसे ही दम है जैसे वो पूजा खेड़कर करती है। और अभी अटेंडेंस बनाने कहा जा रहा है तो नाटक फिर शुरू है कि नहीं मेरे पास आईफोन है, मेरे आईफोन में ऐप नहीं काम कर रहा है बिहार सरकार का, फलान का। तो क्या कहें, सब बहुत से लोग हैं, खैर चलिए, सब जिसको जो करना है करने दीजिए। देखिए मैं आपको कह रहा था, खैर चलिए, पढ़े लिखे से बात आई तो कहाँ से कहाँ निकल आए, कहने का मतलब कि आज पूरे दुनिया में यही हाल है। देखिए जो हम भारत में बिहार में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में अलग हाल है, वहाँ भी यही हाल है। तो नाम के लिए डिग्रियां बहुत जगह मिल जा रही हो कि धंधा खोल लिया है लोगों ने, पैसा दीजिए डिग्री ले लीजिए भाई। तो डिग्रियां तो लोग कहने को पढ़े लिखे हैं लेकिन अनपढ़ ही के बराबर हैं। ज़्यादातर लोग जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ऐसे ही हैं। आज देखिए कि बिस्लेरी आप खरीदने जाए, मिनरल वाटर खरीद के देखिए, आपको बिस्लेरी नहीं देगा कहीं रेलवे वगैरह पर, कुछ कुछ नाम वैसा ही मिलता जुलता नाम का आपको धरा देगा। गलत नाम लिखता है बिस्लरी का, सही नाम नहीं हाँ, लिखता है। डुप्लीकेट वो और आपको दे देगा, और लोग, बोर्ड का उस पे स्टिकर में पिक्चर भी नहीं रहता है। वही हम कह रहे हैं, और लोग भी खरीद लेता है, वो समझता है बिस्लेरी है या यही है जो भी नाम है। समझ लेता है। तो कहने का मतलब बहुत सारा कंपनी में ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारा चीज का नाम आपको ऐसे ही मिला जुला रहेगा। हैं, वाजीराम आईएएस था तो उसका एक वाजीराव एंड रवि खोल लिया उसका नाम पर, कि वाजीराम आईएएस जो है वाजीराम एंड रवि था तो उसको वाजीराव कर लिया, वाजीराव एंड रवि। और एक दूसरा एक वो खोले हुए उनके नाम पर भी कुछ दिन चला, अभी पता नहीं चलता है कि क्या। तो कहने का मतलब है कि आम आदमी ऐसा ही है, और वो ठगा जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि उसको इतना जानकारी नहीं है, इतना उसका दिमाग अलर्ट नहीं है। वो देखता है, विश्वास पर ले लेता है। तो हर जगह दुनिया भर में यही है, हम तो देखते हैं तो यही सोचते हैं कि खाली दिन रात दुनिया ठगी का नाम ही जिंदगी है, खाली ठगी, हर कोई ठगने में खाली लगा हुआ, कैसे दूसरे को ठगे, अरे भाई क्या ठगोगे, सब अपने आप को ही ठगता है, लेकिन आदमी को लगता है, दिमाग पे पर्दा चढ़ा होता है, लगता है कि हम दूसरे को ठग रहे हैं। एनीवे, तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर, ज़्यादातर लोग देखिए हर जगह जो है किसान है। किसान क्या होता है बेचारा, अपना किसानी खेती बाड़ी करना बस जानता है, उससे ज़्यादा बहुत कुछ वो नहीं जानता, और आसानी से वो ठगी का शिकार हो जाता है, उसको लोग चीट कर लेते हैं। इसी तरह नॉर्मल और भी लोग हैं जो कहने के लिए पढ़ा लिखा आम आदमी है, लेकिन वो बेचारा पढ़ा लिखा होते हुए अरे हम जब हमारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, हम मानते हैं कि बहुत कम लोग हैं हमारे ऐसा पढ़ा लिखा, और हम जब ठगा गए एक दो बार, मतलब ऐसा जेन्युइन दम कर दिया क्रिएट, हम नहीं पहचान पाए, बाद में देखे कि बताइए तो फेक प्रोडक्ट था और हम कैसे, हमको ठग लिया, तो फिर कोई भी ठगा सकता है। तो ऐसा अब आजकल तो और इतना ज़्यादा, मतलब कि अब आपको बताया जैसे कि भाई बताए जॉकी का हम ऑर्डर किए हैं और जॉकी का मंगा, जॉकी का वो ओरिजिनल, मतलब हर कुछ ओरिजिनल है, लेकिन वो प्रोडक्ट वैसा क्वालिटी नहीं है जो जॉकी के एक्सपेक्ट होता है। अब जॉकी से हमको मुंह मोड़ना पड़ रहा है। या बहुत सारे, दिल्ली में तो हम रहे तो बहुत तरह का देखे, आप ब्रांडेड हर चीज़ जाइए वहाँ आपको वैन ह्यूजन का, लुई फिलिप का शर्ट लाइन से 200-200 रुपये का बिक रहा है,
₹200 में सारा ब्रांड बेचते रहता है। एकदम आपको पैकेट देख लीजिएगा, आप कोई कह नहीं पाएगा। जब तक कि कोई पुराना कस्टमर उस कंपनी का ना हो, जो बहुत दिन से उस कंपनी को यूज करता रहा है। जैसे हम लोग हैं कि एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्टिचिंग तक को पहचानने वाले हैं कि किस कंपनी का स्टिचिंग कैसा रहता है ओरिजिनल। तो एक नज़र में हम लोग को दिख जाता है, भले लेबल कितना लगा दे, कितना बढ़िया ढंग का कपड़ा डिजाइन वगैरह सब रहे, पैकिंग रहे, लेकिन स्टिचिंग में आप क्या करिएगा, बटन्स में क्या करिएगा, ओरिजिनल बटन अलग होता है हर चीज़ में। तो आपको दिल्ली में देखते थे 200-200 में उस समय बेचते रहता था लाइन से, ब्रांडेड ले जाइए, जो ब्रांड आपको चाहिए, टॉप ब्रांड सब। लेबल तक ओरिजिनल जानते हैं, फॉरेन का लेबल। जैसे एक तो लेबल होता है इंडियन, जैसे वैन ह्यूजन जो कंपनी है बेसिकली है इंग्लैंड की कंपनी। ये पहले बनी थी आपके जो वहाँ के राजा महाराजा और रानी, ये सब रॉयल फैमिली के लिए कपड़े बनाने के लिए कंपनी स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन इन लोग के लिए बनाने लग गई, फिर और भी फिर बिजनेस फैलाने लग गए, सबके लिए बनाने लग गए। तो वैन ह्यूजन का इंडियन ही नहीं बल्कि जो विदेशी उसका लेबल है वो भी आपको मिल जाएगा उन कपड़ों में, जो 200-200 में बिक रहा है, जिसमें जेन्युइन उसका लेबल। तो इतना होता है, लोग क्या अब क्या समझेगा, लोग तो यही ना सोचेगा कि भाई भाई वैन ह्यूजन का शर्ट बेच रहा है या लुई फिलिप का शर्ट 200-200 में दे रहा है। तो हमने देखा दिल्ली में कि कितना ज़्यादा मतलब आपको शोरूम में जाके फेक प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसका क्या उपाय है, आप जब ऑथोराइज्ड दुकान में शोरूम वगैरह तक में जा रहे हैं और वहाँ भी आपको जो है मतलब फेक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा, इतना प्रीमियम ब्रांड महंगा महंगा शर्ट लेगा और जाके वहाँ उसको फेक मिल जाएगा। तो तो बात है कि इट इज़, बोले ना कि इट इज़ वेरी इजी टू चीट पीपल। और इतना टेक्नोलॉजी आ गया है आज के समय में कि जिसके कारण लोग उतना ही ज़्यादा चीट करने लग गए हैं। तो हर जगह पूरी दुनिया में बेसिक अनएजुकेटेड कस्टमर्स कौन है, फार्मर्स, और जो नॉर्मल पीपल हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे, और हर का मिडिल क्लास से कोई नहीं बात है, अपर क्लास भी है तो उसको उतना ही, उसको भी उतना ही कम बुझाता है। ऐसा थोड़े है कि पैसा होने से आदमी का दिमाग तेज हो जाता है, उसको तो और कम बुझाता है। तो एवरी वन इज गेटिंग चीटेड। इसीलिए यहाँ पर है कि फेयर ट्रेड इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैट अल्टीमेटली एम्स टू कीप स्मॉल फार्मर्स एन एक्टिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट प्लेस। पहले यहाँ तक समझिए कि फेयर ट्रेड हम ऐसे तरीके से बिजनेस करने को कहते हैं कि जिससे जो फार्मर्स हैं वो हमेशा एक एक्टिव कंज्यूमर्स बने रहे, यानी वो मार्केट से खरीदते रहे सही ढंग से। तो और कब खरीदेंगे, जब उनके साथ चीटिंग नहीं होगा, जब उनको इतना महंगा नहीं कर दिया जाएगा चीज़, या उनके साथ गलत प्राइस नहीं लिया जाएगा, या गलत प्रोडक्ट नहीं उनको दिया जाएगा। तो फार्मर्स को कोई दिक्कत ना हो, दुनिया भर के फार्मर्स की यहाँ चिंता है, क्योंकि दे आर द पुअर इलिटरेट कंज्यूमर्स। तो फेयर ट्रेड इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैट अल्टीमेटली एम्स टू कीप स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को भी एन एक्टिव पार्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट प्लेस, की जो वो एक्टिव कंज्यूमर रहे दुनिया के मार्केट का, एंड एम्स टू एम्पावर कंज्यूमर, और हर कंज्यूमर को वो ये शक्ति दे, ताकत दे, एम्पावर ताकत देना, टू मेक परचेजेस दैट सपोर्ट देयर वैल्यूज, कि वो ऐसे खरीदारी कर सके जैसी उनकी चाहत है, जैसा वो सोचते हैं, है ना। यानी हम चाह रहे हैं कुछ और हमको दे दे रहा है कुछ। हम जॉकी खरीदे सोच के कि भाई बड़ा आराम आएगा, और दे दिया, उसके बदले जो है कि परेशानी हो जाते हैं पहन के। तो कहने का मतलब है कि जैसा चीज़ हम चाहते हैं वैसा चीज़ हमें मिले, हमें बेचा जाए, और एक फार्मर भी अपना मार्केट से चीज़ों को सही से खरीद सके। इसके लिए इस तरह से जो किया जाता है बिजनेस, उसको हम कहते हैं फेयर ट्रेड। ना इसमें क्या क्या पॉइंट्स है देखिए।
रेजिंग एंड स्टेबिलाइजिंग द इनकम्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स। अच्छा देखिए, दूसरी बात ये, एक और बात यहाँ आ रही है कि फार्मर सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं है बल्कि सेलर भी है, क्योंकि वो बेच रहा है, अपना अनाज बेच रहा है, फल सब्जी सब उगा रहा है, बेच रहा है, तो उसको भी अपनी चीज का सही दाम मिले बाजार में, और सही दाम उसको मिले। ये नहीं कि उसको तो कम दाम मिल रहा है, बाकी बिचौलिए ज्यादा खा जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए भाई। अरे जो पैदा कर रहा है, जो मेहनत लगा रहा है, उसको तो मिलना चाहिए उसका। तो दुनिया भर के फार्मर्स को उनका प्रोडक्ट वो सही से बेच सकें और उसका सही वैल्यू उनको मिल सके, इसको भी हम कर पाए तो हम उसको कहते हैं फेयर ट्रेड। यहाँ सिर्फ कंज्यूमर की बात नहीं है, फार्मर एज ए सेलर भी है, क्योंकि फार्मर भी तो इतना चीज बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। गेहूं जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है? जो फार्मर पैदा कर रहे हैं वही बिक रहा है। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड ग्रेन हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, फ्लावर्स हो, बहुत तरह का चीज होता है। तो वो उसको सही तरीके से वो आसानी से अपना बेच सके और उसको अपने प्रोडक्ट का सही कीमत मिल सके। तो देखिए, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि रेजिंग एंड स्टेबिलाइजिंग द इनकम ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स, फार्म वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, कि इसका मकसद क्या है फेयर ट्रेड का, ताकि पहला छोटे फार्मर्स, छोटे किसान, फार्म वर्कर्स जो मजदूर की तरह काम करते हैं खेतों पर, एंड आर्टिजन्स या और दूसरे जो कारीगर हैं, उनके इनकम को रेज यानी बढ़ाना, एंड स्टेबिलाइजिंग यानी स्थिर रखना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डूब कम हो जा रहा है उनका इनकम, तो उसको स्थिर रखना और बढ़ाना उनके इनकम को, पहला ये इसका पर्पस है। सेकेंड पॉइंट, more equitably distributing the economic gains, opportunities and risks associated with the production and sale of these goods। जो भी चीज़ों का व्यापार हो रहा है, तो उसके व्यापार से जो भी पैसा मिल रहा है, उन पैसों का सब में एक जैसा बंटवारा करना, और जो भी मौके हैं वो सबको एक जैसा मौका मिलना, और जो अगर उसके खतरे भी हैं, रिस्क भी हैं, यानी फायदा नुकसान का भी जो है, तो वो भी सब में एक जैसा बांटना। ये नहीं कि भाई किसी को सारा रिस्क मिल जा रहा है, कोई रिस्क ही नहीं उठा रहा है, खाली फायदा उठा रहा है, नहीं। तो जो इनकम हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है और जो रिस्क हो रहा है, वो सब में बराबर तरीके से उसका बंटवारा करना। थर्ड इज इंक्रीजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कमर्शियल कैपेसिटीज ऑफ प्रोड्यूसर ग्रुप्स। जो प्रोड्यूसर ग्रुप हैं, जो सामान बनाने वाले या पैदा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है उनका एक आपस में संगठन व्यवस्था, और उनका कमर्शियल यानी कि व्यापार करने का जो क्षमता है, खरीदने बेचने का जो क्षमता है, उसको बढ़ाना, यानी वो अच्छे ढंग से आपस में तालमेल करके अपना व्यापार कर सकें बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से। प्रोमोटिंग लेबर राइट्स एंड द राइट ऑफ वर्कर्स टू ऑर्गेनाइज। इसमें मजदूरों के कानूनों को बढ़ावा देना, मजदूरों के जो अधिकार होते हैं, अधिकारों को, कानून नहीं, मजदूरों के अधिकारों को बढ़ावा देना, और जो है वर्कर्स का जो अधिकार है अपने आप को संगठित करने का, जैसे यूनियन बनाना, ये सब, या तो इन सब का उनका अधिकार को सुरक्षित रखना। प्रोमोटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशन, और खेतीबाड़ी के ऐसे तरीकों को बढ़ावा देना जो कि सेफ हों, सुरक्षित हों, यानी उसमें फार्मर को किसी तरह का खतरा ना हो। कई बार हम केमिकल्स ऐसा दे देते हैं कि फार्मर्स को उससे बीमारी हो जाता है यूज़ करना, उसको पता होता नहीं, जानकारी नहीं होता, वो यूज़ करता है और उससे उसको बीमारी हो जाती है। तो ऐसा नहीं, सेफ एंड सस्टेनेबल, जो लंबे समय तक किया जा सके, सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स एंड वर्किंग, और ऐसे काम करने के हालात,
जो कि उसके लिए कोई उसको नुकसान नहीं दे, लंबे समय तक उसको आसानी से ऐसा तरीके से वो खेतीबाड़ी कर सके। फेयर ट्रेड इज अबाउट बेटर प्राइसेस, decent working conditions and fair terms of trade for farmers and workers। तो फेयर ट्रेड का क्या लक्ष्य होता है? फेयर ट्रेड इज अबाउट बेटर प्राइसेस, की बेहतर कीमतें मिले लोगों को, डिसेंट वर्किंग। देखिए, कीमतें जब हम बोलते हैं तो दोनों के लिए लागू होता है, बेचने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए, दोनों को बेहतर कीमत मिले, यानी खरीदने वाले को भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़े और बेचने वाले को भी अच्छा फायदा मिल जाए। अगर हम खाली बेचने वाले का देखेंगे तो वो तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाएं, 50 रुपये का चीज़ 100 रुपये में बेचें, वो तो बेच लेगा, फायदा कमा लेगा। खरीदने वाले का क्या होगा? 50 का चीज़ 100 में खरीदेगा, बेचारे की कमर टूट जाएगी, महंगाई से दब जाएगा। तो दोनों तरफ देखना है। तो ये कहा जा रहा है कि बेटर प्राइसेस, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, जो भी लोग, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, हर किसी के लिए बेहतर काम करने के हालात, एंड फेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और व्यापार के सही नियम कानून, सही मतलब अच्छे से उसका सौदा करना, फॉर फार्मर्स एंड वर्कर्स, फार्मर्स और वर्कर्स के लिए। ठीक है। आज इतना ही रखते हैं शेख। इसको हाँ, इसको भी निकाल ही लीजिएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, आगे इसको भी निकाल लीजिए। आज इतना ही करते हैं, कल ख़त्म हो जाएगा। हाँ हाँ, कल पूरा ख़त्म हो जाएगा।